तो मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ विनियर्ड चर्च जमशेदपुर। और आए आज इस सुबह हम प्रभु के सामने अपने पूरे हृदय से आए, प्रभु के को अपने हृदय में हम बुलाएं इस समय। Let's take this time, we call this time the call to worship. We can just in our hearts meditate on the Lord and invite the presence of the Lord, the Holy Spirit in our midst. परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं। आप जैसा कोई नहीं परमेश्वर। There is none like you, Lord. You are the creator, the maker of heavens and the earth. Lord, you have created everything by the word of your mouth, Lord Jesus. आपके शब्द ने परमेश्वर, जो आपके मुंह से निकला, आपने सभी चीजों की सृष्टि की परमेश्वर। आपके नाम की आराधना करते हैं हम। आपका नाम प्रभु जी हम सभी नामों से ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम को हम प्रथम स्थान देते हैं, आपको प्रथम स्थान देते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमेश्वर। आप आए हमसे बात करें। Lord, you just come, talk to us, Lord Father. Help us to get in tune with you. प्रभु जी हमें आपके साथ प्रभु जी जुड़ने में आप सहायता करें परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी लोग हम लोग मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति बहुत तायत से के ऊपर गिरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाभी के लिए, एलन के लिए, बेबी के लिए परमेश्वर। इसी समय आप अपनी महान उपस्थिति को उनके ऊपर उंडेलें, आपकी चंगाई को उनके ऊपर उंडेले परमेश्वर। Come Lord Jesus, you just fall afresh on them right now. Pray for Sarita, Lord. Would you just come, embrace her in your arms of love right now. आइए परमेश्वर, से बात करें परमेश्वर। प्रभु जी आप हमें अगुवाई करें,
You lead us, Lord Father. We don't want to just run without you. You lead us, Lord Father. Help us to see what you are doing right now. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Trials and the change that's wanting remain, that's wanting remain. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love, your love, your love. And higher than the mountains that are faced, stronger than the power of the grave, constant through the trials and the change that's wanting remains, that's wanting remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love, and on and on and on and on it goes, and overwhelms and satisfies my soul, and never ever have to be afraid. That's one thing remain, that's one thing remain. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love, your love, your love, your love. Yes, Lord.
love never fails us, Lord Jesus. प्रभु जी, आपका प्रेम हमारे लिए अद्भुत है परमेश्वर। आपका प्रेम करने का जो ढंग है परमेश्वर, वो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। आप बिल्कुल परमेश्वर अनकंडीशनली हमें प्रेम करते हैं परमेश्वर। In death, in life, I'm confident and covered by the blood of your great love. My depth is great, there's nothing that can separate my heart from your great love. In death and life, I'm confident and covered by the blood of your great love. My depth is great, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love, your love, your love. प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आप प्रेम है परमेश्वर। One of your greatest attributes, Lord Jesus, is love. And you, Lord, you are love, full of love. There is nothing that you do without love, Lord Jesus. आपका हर चीज में परमेश्वर प्रेम का वो बुनियाद रहता है परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपका योजना आपके बच्चों के लिए भला है परमेश्वर। जो आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए आपका योजना भला है। हमें मदद करे कि हम आपकी उस योजना को जो आपने हमारे ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर हम अपने निगाहों को ले जा सके परमेश्वर।
हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे यीशुआ 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 हर पल मेरी सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास प्रभु जी आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा हमें दीजिए परमेश्वर कि हम अपने रोज बरोज की जिंदगी में परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके परमेश्वर Lord, you teach us your ways. एक नई ताजगी के साथ परमेश्वर आप हमें भर दें हमारे आत्माओं को परमेश्वर आप एक नई ताजगी के साथ भर दें परमेश्वर Thank you, we love you for everything, Lord Jesus. All the good gifts that you give us, Lord Father, are from you. And the very thing that we know you is from you, Lord Jesus. In our sins, it was impossible for us to know you. But Lord Jesus, you took the form of a servant, Lord Jesus. You took the office of man, came to this earth. You died for us, our sins, Lord Father. You went to the cross. You gave up yourself for us, Lord Jesus. प्रभु जी हम किस तरह आपका शुक्र अदा करें परमेश्वर How do we thank you, Lord Jesus, for what you have done for us? Thank you, Father. Thank you for this time. Be with us, Lord Father, throughout the service. Be with me, Lord Father, as I share from the word. Let everything that I speak be it from you, Lord Jesus. And anything that is from my own mind or wisdom, Lord Father, you just, Lord Father, let it be destroyed in your name. Holy Spirit, you speak through me, Lord. Thank you, Father.
We ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. And once again, I extend a very warm welcome to Vineyard Church Jamshedpur. और मैं फिर से एक बार आप सबों को स्वागत करता हूँ विनियर्ड चर्च जमशेदपुर में। तो आइए हम वचन में जाएं। लेट्स मूव इनटू द वर्ड। तो 2 हफ्ता पहले हमने और एक सीरीज हमने शुरू किया था और इस सीरीज का टॉपिक था कि व्हाट इज गॉड लाइक इन द बाइबल, या दूसरी भाषा में हम दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि पर जो बाइबल का परमेश्वर है वो कौन है और वो कैसा है। ठीक है, तो हमने पिछली बार बात करा कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो कोई ऐसा शख्स नहीं कि जो आसमान में है, जिसका सफेद दाढ़ी हो और है ना, बस अपने आप को परमेश्वर के नाम से वो लोगों को बतलाता है ना, ऐसा नहीं है ना। ना कि वो जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं वो खुद सृष्टि का भाग नहीं है ना। ही इज नॉट क्रिएशन, ही इज नॉट द क्रिएशन, बट ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, और हमने देखा कि जो बाइबल का जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर, ये कॉन्सेप्ट जो बाइबल में हम देखते हैं वो है कि त्रिएक परमेश्वर, द ट्रिनिटी। और बाइबल में पहला जो पुस्तक है जेनेसिस, उत्पत्ति का किताब, और वहां पे जो पहला वर्स है वहां पे लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, है ना। तो गॉड, वहां पे जो हिब्रू में जो गॉड का जो वर्ड लिखा हुआ है हिब्रू में वो है इलोहिम। और इस इलोहिम शब्द का जो अर्थ होता है वो सिंगुलरिटी को नहीं दिखाता, वो प्लूरिटी को दिखाता है। मतलब एक से अधिक, है ना, वो एक शख्स को नहीं दिखाता, वो एक से अधिक शख्स को दिखाता है। और इसीलिए वहां पे परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम, या हिंदी में हम अगर पढ़ें तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने सारी चीजों की सृष्टि की, और आगे हम पद में आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पे हम शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो इलोहिम है वो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है कि जो हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। ठीक है, ही इज 3 in 1 गॉड, मतलब त्रिएक परमेश्वर है। और दूसरी चीज, जैसे कि हमने बात करा कि परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, परमेश्वर प्रेम है, तो अगर परमेश्वर 3 शख्स में मौजूद नहीं होता, ठीक है, then it is impossible for God to experience love and have that attribute if God was not in the person of 3, है ना। जब एक शख्स जब भी अपना प्रेम जाहिर कर पाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे मौजूद हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम रखता है, या हस्बैंड और वाइफ आपस में जो उनका प्रेम रहता है, या है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ अनदर पर्सन व्हेन वी स्पीक अबाउट लव, है ना। जब हम किसी और शख्स के बारे में सोचते हैं तो जब भी हम अपना प्रेम जाहिर कर पाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का जो सबसे जो प्रथम जो सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है वो है प्रेम, है ना। प्रेम के बिना परमेश्वर नहीं। अगर परमेश्वर में प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं। और इसी त्रिएक परमेश्वर, फादर गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, अगर बिटवीन दिस 3 पर्सन्स ऑफ गॉड अगर प्रेम नहीं होता तो वो प्रेम हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और परमेश्वर वो प्रेम हमारे ऊपर जाहिर नहीं कर पाता। तो दिस इज द फंडामेंटल
attribute of God that God is love. परमेश्वर प्रेम है. हम देखते हैं कि he created all the millions of stars, different galaxies, huge sun, है ना. अपने आकाश गंगा में हम देखते हैं, अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं. सोलर सिस्टम के बाहर हम देखते हैं कि कैसे कैसा हम किताबों से पढ़ते हैं कि उसके बाहर भी कितने सारे मिल्की वे या गैलेक्सीज हैं, है ना. अलग अलग गैलेक्सीज हैं जिनको इंसान खोज भी नहीं पाया. उस परमेश्वर को, उस चीजों को रचने वाला परमेश्वर ये है. बाइबल का परमेश्वर, बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने आदि में सभी चीजों की सृष्टि की, सभी चीजों को बनाया. कैसे बनाया? अपने मुख से जो शब्द निकला उससे सभी चीजों की सृष्टि हुई, है ना. और हम अपने सोलर सिस्टम में अगर देखें तो हमने हमारे जो सूरज है, सूर्य है, वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1.3 मिलियन टाइम्स जो हमारा जो पृथ्वी है वो समा सकता है. The earth could fit in the sun 1.3 million times. So you can just imagine, we are speaking about just the sun, and imagine the whole heavens, how big it must be, and how big is our God that he just out of his mouth he spoke the word and things came into being. ये हमारा परमेश्वर है. ये हम बड़े लेवल में बात कर रहे हैं. हम छोटी से छोटी माइन्यूट चीजों के ऊपर भी हम अगर दर्शाएं तो हम अपने ह्यूमन सेल्स में जा सकते हैं, अपने डीएनए में जा सकते हैं. कितना माइन्यूट से माइन्यूट चीज परमेश्वर जो हमें दिखता नहीं है ना, माइक्रोस्कोप से भी ठीक से नहीं दिखता, उस चीजों की रचना करने वाला परमेश्वर है. हमने और एक चीज बात की कि माँ के पेट में परमेश्वर बच्चा रखता है ना. तो परमेश्वर का जो हर एक चीज मास्टरपीस है परमेश्वर का. ही इज अ परफेक्ट गॉड. ही क्रिएट्स एवरीथिंग perfectly. There's nothing that is lacking in his creation. What he creates. वो माँ के पेट में बच्चा रखता है और 9 महीने वो पेट से जो जुड़ा हुआ जो नली होता है या अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसके थ्रू बच्चा क्या करता है, अपना नरिशमेंट पाता है. और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जब बच्चा बाहर आ जाता है माँ के पेट से, तो परमेश्वर अपने महान परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर अपने पावर में ये होने देता है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर निकलता है, उसका जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, वो काम में आना शुरू करता है और वो उसी समय अम्बिलिकल कॉर्ड से नरिशमेंट लेना बंद कर देगा और उसका जो श्वास का जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, वो उसी समय धड़कने लग जाएगा. सोचिए, इस टाइम तक जब माँ के पेट में था, बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड से सांस ले रहा था, न्यूट्रिशन ले रहा था, मगर जब बाहर निकलता है माँ के पेट से, उसके जो लंग्स हैं उसको धड़कने देता है और उसका फिर नाक से सांस लेना, मुंह इस्तेमाल करना, मुंह से फीडिंग लेना, ये सब शुरू होता है. और हमने दूसरी चीज बात की कि हम इतने सारी चीज देखते हैं अपने सोलर सिस्टम में, अपने गैलेक्सीज में और अपने पृथ्वी में ही, है ना. हम जानवरों को देखते हैं, मीन्स इस अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, पहाड़, पेड़, जल के नीचे देखते हैं, समुद्र के नीचे देखते हैं, नदी के अंदर देखते हैं, जो भी मछलियां हैं, जितने भी पानी के अंदर जीव जंतु है, पानी के बाहर जीव जंतु है. साइंस कहती है कि एवरीथिंग केम इनटू बीइंग, है ना, विद अ बिग बैंग, है ना. ये बता कि बस एक कोइंसिडेंस था कि ऐसा एक धमाका हुआ और सब चीज हो गया, है ना. इट्स नॉट दैट एवरीथिंग केम इनटू बीइंग, इट इज जस्ट इट हैपेंड. देयर इज अ सुप्रीम पावर दैट runs all this
who runs the law of the universe, who runs the law of our life. एक चलाने वाला है. अगर चलाने वाला नहीं होता कोई, तो किसी भी चीज में अगर नियंत्रण नहीं होता, उसके चलने का कोई लॉ नहीं होता या रूल नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रेन का पटरी में अगर वहां पे स्टेशन मास्टर नहीं होता देखने के लिए या जो भी, तो सोच सकते हैं कि अगर आपस में इधर उधर से ट्रेन आ रहा है तो क्या धमाका हो सकता है, क्या हादसा हो सकता है. इसीलिए it's not just a accident thing that happened with the Big Bang, or any theory that the scientist or the people believe that everything came into being on its own. Our Bible, the Bible says that it is God who created everything. It is He who runs the universe, everything by the power of His mouth. है ना. हमने बात किया कि हम अपने ही अंदर अगर देखें तो परमेश्वर ने हमें सेंसेस दिए हैं, है ना. हम सुन सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. और इंसान को परमेश्वर ने बिल्कुल अपने नजदीक में प्रेम से बनाया है. वचन कहता है कि He created us in His own image. मतलब हर वो चीज, स्वभाव जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, है ना. हमारे अंदर प्रेम, हर वो चीज जो परमेश्वर का एट्रीब्यूट है, उनमें से परमेश्वर ने वो एट्रीब्यूट्स हम में डाले जो परमेश्वर ने इंसान के लिए रखा. कई चीज एट्रीब्यूट्स है जो परमेश्वर खुद का है, वो किसी और से परमेश्वर किसी और को नहीं दिया हुआ है ना. जैसे कि ओमनी प्रेजेंट, है ना, ओमनीसिएंट. तो ये सब चीजें जो एट्रीब्यूट्स है, जो बिल्कुल हर जगह एक समय में मौजूद होना, ये इंसान नहीं कर सकता या कोई और स्पिरिट नहीं कर सकता, मगर ये परमेश्वर को गुण है. मगर अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो परमेश्वर में है, वो परमेश्वर ने हमें भी दिया है ना. हम अपने कैरेक्टर को परमेश्वर के स्वभाव में बिल्ड कर सकते हैं. अपने लाइकनेस को परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की लाइकनेस में बढ़ते जाएं. परमेश्वर चाहते हैं कि हम में प्रेम हो. परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों को माफ करें. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखें. तो परमेश्वर में प्रेम है. अगर परमेश्वर में प्रेम नहीं होता तो परमेश्वर को हम परमेश्वर नहीं कह सकते. और वो त्रिएक परमेश्वर आपस में इस स्वभाव से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं कि वही जो चीज परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में भी दर्शाया, उस प्रेम को, है ना, खास तौर पे इंसान में. तो हम आगे बढ़ेंगे. मैंने फिर कई पदों के ऊपर लास्ट टाइम बात किया था. यहाँ पे हम एक पद में पढ़ लूंगा, Hebrews 1:3. आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, या आपके पास इंग्लिश या हिंदी बाइबल जो भी हो. Hebrews chapter 1 verse 3, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि He is the radiance. यहाँ पे यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि He is the radiance of the glory of God. कि जिसने परमेश्वर को नहीं देखा, जिसने यीशु मसीह को देखा है, उसने तो परमेश्वर को देख लिया है. क्योंकि परमेश्वर का जो चमक है, जो ग्लोरी है, जो महिमा है, वो तो यीशु मसीह है. ठीक है. एंड द एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ हिज नेचर, की परमेश्वर का जो एग्जैक्ट नेचर है वो यीशु मसीह में हमने देख लिया. जब इंसान के रूप में यीशु मसीह आए तो हमने परमेश्वर के नेचर को यीशु मसीह में देखा. एंड ही अपहोल्ड्स द यूनिवर्स बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर. यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि वो तो पूरे जगत को, यूनिवर्स को अपने मुख के पावर से चलाता है या उसको उठा के रखता है. तो यीशु मसीह परमेश्वर खुद हैं, त्रिएक परमेश्वर हैं, कि वो यीशु मसीह खुद ने सारी चीजों की सृष्टि की और हर एक चीज को चलाता है परमेश्वर. हम आगे बढ़ेंगे और मैं एक्ट्स
उसका 17, उसका 24 to 28। प्रेरितों के काम 17, 24 से 28 तक मैं पढ़ूंगा, आप भी अपने बाइबल में साथ में पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, फिर मैं नैन्सी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हिंदी में इसको पढ़ दें। प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 17 वर्सेस 24 थ्रू 28। इसमें लिखा हुआ है, The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man he made all the nations, that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being. Acts 17, 24 through 28। नैन्सी हिंदी में पढ़ेगी। प्रेरितों के काम 17 का 24 से 28 तक। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोलकर पाएं। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. कि इंसान इस तरह परमेश्वर से दूर हुए, जब इंसान ने गुनाह किया तो वो अलग अलग चीजों को खोजने लगा, है ना, अलग अलग चीजों को खोजने लगा, और परमेश्वर से दूर होके शैतान ने इस तरह डिसीव किया कि लोग सोचने लगे मैं एक कुछ मंदिर बना दूंगा, तो वहां पे मैं ये किसी चीज को आकार दूंगा या स्टैचू बना लूंगा, ये है ना, अलग अलग चीज लोगों ने सोचने लगा। मगर परमेश्वर कहता है कि मैं तो इंसान के बनाए हुए मंदिरों में तो नहीं रहता, मैं तो सारे पृथ्वी और जगत का रचने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। 25वां पद कहता है, he is not served by human hands as if he needed anything, है ना, कि परमेश्वर को इंसान के हाथ से क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने तो सारी चीजों की रचना की, सृष्टि की, और इंसान सोचता है कि इंसान कुछ दे सकता है अपने हाथ से परमेश्वर को, है ना। ये मूर्खता की बात है, ये एक फुलिशनेस है इंसान का, है ना, एक डिसीवनेस है शैतान का, कि किस तरह लोगों को परमेश्वर से दूर शैतान करता है ना, कि इंसान कुछ नहीं दे सकता परमेश्वर को, यहां तक कि खुद को बचा नहीं सकता। वो यीशु मसीह खुद आए हमें बचाने के लिए। Rather he himself gives everyone life and breath and everything else, कि वो तो हर एक को क्या देता है, जीवन देता है, उसको रोटी देता है, और हर एक चीज उसको श्वास देता है, और हर एक चीज देता है जो इंसान या जो परमेश्वर की सृष्टि को जो चाहिए, वो परमेश्वर है जो देता है।
और एक पद मैं पढ़ूंगा, रोमियो की किताब, उसका 20 से 23, रोमन्स 1 वर्स 20 टू 23। इसमें लिखा हुआ है, फॉर एवर सिंस द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see the invisible qualities, his eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Yes, they knew God, but they would not worship him as God or even give him thanks. And they began to think up foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Claiming to be wise, they instead became utter fools. And instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worshipped idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. Romans 1:20-23। हिंदी में नैन्सी पढ़ेगी। रोमियो की किताब 1:20 से 23 तक। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। है ना? तो यहाँ पे क्लियरली रोमियो की किताब में संत पौलुस कहता है कि फॉर एवर सिंस द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, कि जब से जगत की सृष्टि हुई है, पीपल हैव सीन द अर्थ एंड द स्काई, कि उसने तो जगत और आसमान को, आकाश को देखा है ना इंसान ने। थ्रू एवरीथिंग गॉड मेड दे कैन क्लियरली सी हिज इनविजिबल क्वालिटीज, कि परमेश्वर का जो अनदेखा जो गुण है वो इंसान देख सकता है ना? सृष्टि को देख के इंसान देख सकता है कि इस सृष्टि को रचने वाला कोई परमेश्वर है, कोई महान ताकत है जो इस सृष्टि को चलाता है, बनाता है ना? इस इटर्नल पावर एंड डिवाइन नेचर, है ना, कि वे उसका जो अनंत काल का जो शक्ति है, ताकत है, और उसका जो डिवाइन नेचर है, प्रभुता है, उस चीज को इंसान देख सकता है। मगर इंसान का जो फुलिशनेस है, जो मूर्खता है, उसने क्या किया? सो दे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यस दे न्यू गॉड, 21वां पद, हाँ वे परमेश्वर को जानते थे, बट दे वुड नॉट वर्शिप हिम एज गॉड और इवन गिव हिम थैंक्स, है ना? वो परमेश्वर को जानते हुए भी उस परमेश्वर को आराधना नहीं करते, उसके नाम को स्तुति महिमा नहीं देते और उसको धन्यवाद भी नहीं करते। एंड दे बिगेन टू थिंक अप फुलिश आइडियाज, किन किन मूर्खता का विषय या थॉट्स दिमाग में आता है जब परमेश्वर से इंसान दूर हो जाता है। शैतान किस तरह इंसान को चलाता है, देखिए, फुलिश आइडियाज ऑफ व्हाट गॉड वाज लाइक, है ना, कि परमेश्वर से तो दूर हो गया, फिर परमेश्वर से दूर होकर सोचने लगता है कि परमेश्वर कैसा होगा, है ना? परमेश्वर से दूर हो गया और सोचने लगा कि अपने ही बुद्धि में कि परमेश्वर कैसा होगा, है ना? As a result, their minds became dark and confused. इसका जो परिणाम क्या हुआ कि इंसान का जो बुद्धि है वो बिल्कुल अंधकार से भर गया और बिल्कुल
जो उसका जो सोच समझने का जो ताकत था, इस बुद्धि का जो परमेश्वर ने दिया है, वो बंद हो गया है उसको। वो बिल्कुल अंदर एक कंफ्यूज्ड माइंड बन गया है ना लोगों का। क्लेमिंग टू बी वाइज दे बिकेम इंस्टेड बिकेम अटर फूल्स, है ना। अपने आप को तो हम बुद्धिमान समझते हैं, है ना। परमेश्वर से दूर होकर हम समझते हैं कि हम तो परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं चलाने देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हम सोचते हैं कि हम तो बुद्धिमान हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है, हम बिल्कुल मूर्ख हैं, है ना। मूर्ख के समान हैं अगर हम परमेश्वर से दूर हैं और अपने आप को हम वाइस मानते हैं। और क्या हुआ आगे 23वां पद में, एंड इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग द ग्लोरियस एवर लिविंग गॉड दे वर्शिप्ड आइडल्स मेड टू लुक लाइक मेयर पीपल। परमेश्वर से दूर होके इंसान ने क्या किया, चीजों को आकार देने लग गया, स्टैचूज बनाए, आइडल्स बनाए, है ना। उसको इंसान का शक्ल दिया, है ना, मुंह, आंख, नाक, ये वो, है ना। और मेड कि वे लोगों के जैसे दिख सके, या आकार दिया पंछी का, है ना, या जानवरों का, या रेप्टाइल्स का, है ना। कहने का मतलब अलग अलग चीजों का आकार दिया कि ये मेरा परमेश्वर है, मैं इसको पूजूंगा। परमेश्वर से दूर होके उन्होंने अपना परमेश्वर बनाया, जिस परमेश्वर में कोई ताकत नहीं, जो बिल्कुल पत्थर है या मूर्ति है, उन चीजों के पीछे लोग चलने लगे, है ना। किस तरह जब परमेश्वर से हम दूर होते हैं तो इंसान का दिमाग किस तरह अंधकार में आ जाता है, हम देख सकते हैं। आज के दिन में कितने लोग अंधकार में डूबे हैं और शैतान अपना जड़ किस तरह बनाए रखा हुआ है। हमें प्रार्थना करना है कि शैतान की इस जड़ को परमेश्वर आप तोड़ दें, आप अपने लोगों को आप भेजें कि आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। जॉन 4:24, यूहन्ना 4:24, इसमें कहता है कि गॉड इज स्पिरिट एंड हिज वर्शिपर्स मस्ट वर्शिप इन द स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, है ना। परमेश्वर तो क्या है, आत्मा है। बाइबल का परमेश्वर कौन है, वो कोई स्टैचू नहीं है या कोई शख्स नहीं है ऊपर की बैठा हुआ सफेद दाढ़ी लेके अपने आप को, है ना, परमेश्वर कहलाता है। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे लिखा हुआ है गॉड इज स्पिरिट, वे तो आत्मा है, और हिज वर्शिपर्स मस्ट वर्शिप इन द स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, कि जो भी आराधक हैं परमेश्वर के, उन्हें क्या होना है, उनको अपने आत्मा में होके और सच्चाई में होके परमेश्वर से को महिमा देना है या परमेश्वर के पास आना है। अगर हम में सच्चाई नहीं तो हम परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते हैं। हम जैसे भी हैं सच्चे मन से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, परमेश्वर मैं इस लायक नहीं, मगर परमेश्वर मैं आपको अपना जीवन सौंपता हूं या सौंपती हूं, है ना। The Lord, the God of the Bible is full of truth. His another attribute is he is truthful, he is full of truth, ठीक है। वहां उसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य ही सत्य है परमेश्वर में, और परमेश्वर आत्मा है। तो हम जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, हम अपनी शारीरिक अवस्था में या अपने कार्नल माइंड को लेके, कार्नल बॉडी को लेके, फ्लैश को लेके नहीं आ सकते। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आत्मा को खोल के हमें परमेश्वर के पास आना है। जब हम परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना करते हैं, वो अपने शारीरिक अवस्था में होकर हम नहीं करते, हम अपने आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, है ना। क्योंकि हमारा आत्मा में कौन वास करता है, वो पवित्र आत्मा वास करता है, और पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम अपने आत्मा में होके परमेश्वर को आराधना करें। We cannot worship the Lord, we cannot do things of God without being in the Spirit. When we accepted Lord Jesus Christ, what happened? He revived our dead spirit inside of us. जो आत्मा शुरुआत में जब आदम और हवा ने गुनाह किया,
जो आत्मा उस समय मर गया था, अब जब यीशु मसीह के बलिदान पे हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे मरे हुए समान जो आत्मा था उसको वापस जिंदा करता है। अब हम उस आत्मा में होके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, और उस आत्मा में हमारे हृदय में अब कौन बसता है? अब पवित्र आत्मा बसता है। हर एक विश्वासी के अंदर कौन बसता है? पवित्र आत्मा बसता है। तो जब हम आराधना करते हैं, जब हम बाइबल से बांटते हैं, तो हम इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस, है ना, ये एक दिखावटी चीज नहीं है। जब कोई आराधक चर्च में लीड करता है ना, तो परफॉर्मेंस नहीं है, वो अपने आप को दर्शाने के लिए उसको नहीं करना है। चित्र ऐसा है कि वे भी परमेश्वर की ओर देखता है, और जो झुंड है, जो चर्च है, उसको भी लीड करता है कि परमेश्वर हम सब आपकी आराधना करते हैं। वो अपने आप को लोगों को या चर्च को नहीं दिखाता कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं, ये सब पे लागू होता है। कोई लीडर हो, है ना, कोई चर्च का लीडर हो या वर्शिप लीडर्स हो या कोई भी जो परमेश्वर के लिए काम करता है, उसमें सर्वेंट हार्ट होना है, और उसका आत्मा में वे हर काम को उसको क्या करना है? आत्मा में करना है। विदाउट डूइंग थिंग्स इन द स्पिरिट वी आर नॉट लिफ्टिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड हाई। अगर हम आत्मा में होके काम नहीं कर रहे हैं तो हम चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं दे रहे हैं। बाइबल का हर एक जिस भी पृष्ठभूमि से आप आते हो, जैसे कि मैं अलग पृष्ठभूमि से आया हूँ, है ना, सरिता अलग पृष्ठभूमि से आई है, शिवानी अलग पृष्ठभूमि से आई है, तो बहुत सारे अलग अलग, है ना, लोग जो आते हैं, मसीह को जानता है और अलग अलग पृष्ठभूमि से परमेश्वर को जान लेता है ना। तो परमेश्वर जो बाइबल का है, वे ऐसा परमेश्वर है जो जानता है कि मनुष्य अपने आप में खुद को नहीं बचा सकता, है ना, उसको किसी बचाने वाले की, किसी सेवियर का, किसी मसाया का जरूरत है। ये परमेश्वर जानता है कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, अपने आप को सिद्ध नहीं ठहरा सकते हैं। बाकी जितने भी है ना धर्म है, उसमें क्या होता है कि हमें काम करना पड़ता है। we have to make an effort, है ना, through prayers, through pilgrimage, through no different things। क्या होता है कि मुझे इससे क्या होगा, मुझे परमेश्वर के नजदीक मैं जा पाऊंगा या जा पाऊंगी। अपने ही मेहनत से मैं क्या करूंगा, मैं अगर पिलग्रिमेज में जाऊंगा तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, और परमेश्वर मुझे इस चीज से जन्नत मुझे देगा, या, है ना, मैं अपने आप को इस तरह एनलाइटमेंट कर दूं कि मैं मोक्ष पालूं, है ना। एनलाइटमेंट, अलग अलग धर्म के अलग अलग विचार हैं, मगर जो बाइबल है, परमेश्वर का जो बाइबल का जो परमेश्वर है, वे सच्चा परमेश्वर है, वे जीवता परमेश्वर है। बाइबल का जो परमेश्वर है, वे मानव रूप धारण करके आया। उसने कहा कि मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और इस चीज को हर एक व्यक्ति ने, है ना, इस इवेंट को होते हुए देखा। बाइबल का परमेश्वर हर एक चीज से होके गुजरा है। यीशु मसीह जिस जिस टेम्पटेशन से आप और मैं होके गुजरते हैं, बाइबल का परमेश्वर हमसे एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहता है ना। अलग अलग धर्म में हम, किसी किसी धर्म में तो परमेश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, पर उनको मोक्ष पाना है, या, है ना।
हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उससे एक पर्सनल रिलेशनशिप में जाएं। हमारा परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया हुआ है, पवित्र आत्मा दिया हुआ है हमें अगुवाई करने के लिए। हमारा परमेश्वर जानता है कि वी कैन नॉट डू वर्क्स, गुड वर्क्स एंड एंड टू गो इन हिज किंगडम। हमारा परमेश्वर ने सिर्फ हमें बोला है कि तुम्हारे विश्वास यीशु मसीह पे जब हम विश्वास रखते हैं तो हम बचाए जाएंगे, और हमारे विश्वास का जो परिणाम होगा, जो प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, वो रिजल्ट करेगा गुड वर्क्स में। जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो वो हम हर एक चीज वो चीज करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है ना। अच्छे अच्छे काम विश्वास के बाद काम आता है। परमेश्वर पे विश्वास रखने से पहले अच्छे अच्छे काम करके फायदा नहीं, क्योंकि हमें उस परमेश्वर को जानना है जिसके थ्रू हर एक अच्छा चीज आता है। बहुत सारे धर्म में अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं मगर वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हमारा विश्वास है जिससे हम बचाए जाते हैं परमेश्वर पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो एक इम्पर्सनल परमेश्वर नहीं है। God is not a impersonal God who got nothing to do with you and me. He is God of love. He is a God of love. ठीक है? He created us. He wants a relationship with us where we get to know Him as our Father. वह चाहता है कि हम सबके साथ एक रिश्ते में, नजदीकी रिश्ते में बंध जाएं, और दिन ब दिन वो रिश्ता मजबूत होता जाए पवित्र आत्मा के अगुवाई से। क्रिश्चियन लाइफ इज अ प्रोसेस वेयर वी are continually transformed in the image of Christ through the power of Holy Spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को एक पर्सनल वे में जाने, और एक जैसे होता है ना बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है, उसी रिश्ते के समान हम परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर को सुने, परमेश्वर हमें सुने। जिस तरह गुनाह आने से पहले आदम की वाटिका में किस तरह परमेश्वर आदम और हवा के साथ चला करता था। His plan is to restore that thing in the coming age, कि हम जहां पे शैतान का राज्य नहीं होगा और हम परमेश्वर के साथ उठ बैठ सकेंगे, परमेश्वर के नाम को आराधना दे सकेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को पिता के रूप में जाने, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हम सबों को रचा है। तो आगे हम नेक्स्ट वीक आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस आज के शेयरिंग्स ने आपसे बात किया होगा, आपको इनकरेज किया होगा। आइए हम कुछ देर के लिए प्रार्थना में जाएं, फिर हम समाप्त करेंगे। Lord, we thank you, we love you, we bless you, Lord, we lift your name high. प्रभु जी, हम अपने आप को शून्य करके आपके सामने आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमसे बात करें। प्रभु जी, आप मदद करें कि हम अपने जद्दोजहद को छोड़ दें और पूर्ण रूप से आप पे हम निर्भर हो जाए परमेश्वर। Your word teaches us to be dependent on you. Your word says, Lord, out of our own we can do nothing. हम अपने आप से होके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें आप पे निर्भर होना है परमेश्वर, आपसे सीखना है परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी, एक एक शख्स जो यहाँ पे मौजूद है, एक एक से आप बात करें, एक एक के आत्माओं को आप वापस से एक तरोताजा परमेश्वर आत्मा में भर दें परमेश्वर। Holy Spirit, just stir up the spirits of each one of us. Refresh our souls, Lord Jesus. Thank you, Lord Father, for who you are. धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें।
अब परमेश्वर का प्रेम, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन।